Hare, Hare Krishna. So we welcome everybody. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhaktir Bhavati Naishtakim Shri Shuka Uvacha Nandapati Vacha Shaurer Namrisheti Vichintayan Harim Jagama Sharanam Utpatagama Sankita Shri Shuka Uvacha Nandapati Vacha Shaurer Namrisheti Vichintayan Harim Jagama Sharanam Utpatagama Shankita. Translation. मेरे पीछे दोहराइए. Shukdev Goswami continued. My dear king, while Nanda Maharaja was on the way home, he considered that what Vasudev had said could not be false or useless. There must have been some danger of disturbance in Gokula. As Nanda Maharaja thought about the danger for his beautiful son Krishna, he was afraid and he took shelter at the lotus feet of the Supreme Controller. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Can anyone read? Whenever there is a danger, the pure devotee thinks of the protection and shelter of the Supreme Personality of the Godhead. This is also advised in the Bhagavad Gita 9.33. Anityam Asukham lokam imam prapaya. Prapaya bhajasam mam. In this material world, there is danger at every state. Padam yada padam yad vipadam. Therefore, a devotee has no other resource than to take shelter of the Lord at every step. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitam Shri Vishakam Vitamsya. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So welcome everybody once again. So we have started Janmashtami special Krishna Leelas. So
we have read about the Canto 10, Chapter 6 or Shlok number 1. Canto 10, Chapter 6, Shlok number 1 पे हमने अभी we just discussed. So what is that? Huh? No. It was Shukdev Goswami speaking to Parikshit. है ना? Shukdev Goswami Maharaj is speaking to Parikshit. So entire Bhagavatam was spoken to Parikshit Maharaj by Shukdev Goswami. So when Shukdev, so we are, as I said, we will be discussing about the Krishna Leela during the Janmashtami day. So Krishna, what first Leela he did was Putana, right? He gave deliverance to Putana. Putana को उसने मोक्ष दिला दिया. तो हम लोग आज पूतना का कथा सुनेंगे, ठीक है ना? जो पहली लीला, जो कृष्ण जब 6 दिवस के बालक थे, उन्होंने पूतना का वध किया था. He killed Putana when he was just 6 days old. So we'll start with leelas from Putana and we'll go ahead. Whatever time permits, 3-4 weeks we have. So whatever 2-3 leelas we can hear, we'll hear. And it is a story. So we'll hear the story here only. Okay. So we'll hear the story here itself. So Sri Shuka Vacha, Nanda Pati Vacha Shaurer. So what Shukdev Goswami, like, this chapter 6, this is chapter 6 of Srimad Bhagavatam as well as Krishna book, if anybody has read. So that is, the title is Putana killed. But the actual mystery is Putana is not killed. She is delivered and elevated. She is delivered and elevated to the higher planet. Why and how, we'll understand today with this katha. So one may ask, what is the use of we hearing Putana Vad? She came with the wrong intention to kill Krishna. So why are we hearing? है ना? सब लोग पूछ सकते हैं, तो इसका सुन के फायदा क्या है? पूतना वध को, क्योंकि क्या होता है कि unless you know the reason, probably you will not be able to concentrate on the katha. Okay, so first you should know why. What is the use of reading this Putana ka katha ka advantage? So in that same next sloka I have given in the mobile, sloka 44 of that chapter gives the essence. हम बोलते हैं ना कोई ये पुण्य करने से, मीन्स ये कार्य करने से ये पुण्य मिलेगा, है ना, ये फायदा होगा. तो फायदा क्या होगा? What is the advantage? We will just understand through the 44th shloka, which is ya etat putana moksham Krishnasya madbhutam Shunyat Shruddaya Martyo Govinde Labate Ratim. Any person who hears with faith and devotion about how Krishna, the Supreme Personality of Godhead, killed Putana, and who thus invest his hearing in such childhood pastimes of Krishna, who such invest his time in hearing the childhood pastime of Krishna, certainly attains attachment of Govinda. Certainly attains attachment of Govinda, the Supreme Original Person. Govinde Labate Ratim. So we get our Rati and Mati, हमको गोविंद के चरणों में लग जाती है. So we get we get attachment to Govinda's lotus feet. So you see this, entire Shastras. We have so much of Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, Puranas, Itihas. All this, what are they hinting you out? That somehow or the other you get your Mati and Rati in the katha, in the katha or in the lotus feet of the Supreme Lord. ये जो भी कथा हम सुनते हैं, तो उसमें हमारी रति और मति दोनों लगनी चाहिए. रति और मति का मतलब क्या होता है? मति, हाँ. रति का मतलब टेस्ट, तो सुनने की इच्छा, है ना? तो सबको सुनने की इच्छा रहनी चाहिए. तो ये पूतना मोक्षम की हम कहानी सुनते हैं. When we listen to this पूतना मोक्षम, we get this our rati and mati. So our concentration as well as the urge to hear about Krishna increases more and more. And if you hear about Krishna and sing about Krishna or take the name of Krishna, is it different? No, just now we spoke, right? The name has all the activities, right? So even if you are taking the Leela, you are taking the pastime,
still you are connected with Krishna. If you are taking the name of Krishna, you are still connected with Krishna. So in all circumstances, you are connected with Krishna. And when you are connected with Krishna, Govinde labate ratim. So your rati, automatically your taste would certainly come into Krishna, and we'll attain Krishna's lotus feet. So next 45-50 minutes we'll be investing our time. 45 minutes we'll be investing our time to listen about Krishna's pastime called Putana Moksha. Govinde labte ratim. So everything in this material world, हम बोलते हैं ना कि इस जगत, material जगत में everything is attained. You know, पुरुषार्थ कहता है कि थोड़ा मेहनत करो, आपको जो है सो थोड़ा पैसा मिल जाएगा. पुरुषार्थ से you know, you just work for a little bit, you will get money, and with that you will get property, you will become husband, you will get husband. If you're a wife, you'll get husband, you'll get children, and you know, everything means very easy. But at the same time, when you analyze कि भगवान के चरणों में रति, how do you get your interest in the lotus feet of Krishna? Very, very difficult. क्योंकि मन लगा लो, भगवान के कथा में मन लगा लो, मन ही नहीं लगता है ना. अर्जुन भी बोलता है, क्या करूं, ये मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मन ही नहीं लगता है, बाकी सब कार्य हो जाएगा, मन ही नहीं लगता है. तो ये मन लगाने के लिए ही ये पास टाइम्स वगैरह कृष्णा ने इतने परफॉर्म किए, सो दैट आप यदि बार बार सुनते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी रति बढ़ जाती है. तो रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 6 अंग बताते हैं कि इसके क्या बोलते हैं, भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाते हैं. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा, लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी. इस प्रकार से है. तो हम अभी सभी का डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी लंबी क्लास होती है. उसके अंदर सुदुर्लभा, तो ये भक्ति चरणों में, कृष्ण के चरणों में रति सुदुर्लभा है. दुर्लभा मतलब डिफिकल्ट, दुर्लभा इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, सुदुर्लभा वेरी डिफिकल्ट, है ना, very difficult. So Rupa Goswami also says that, you know, Krishna bhakti is sudurlabha, means very rarely achieved, very rarely achieved. You have to put your, you know, आपका समय लगाना पड़ता है, आपको कृष्ण के बारे में जानकारी करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है. So you have to put your so it's a devotion which is rarely achieved, है ना. So Narad Muni in his Narad Sutra, he says satsangam sudurlabham. There also he says सत्संग मिलना दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है. तो ये लव, फेथ एंड रेफरेंस टुवर्ड गॉड इज नॉट अ कमोडिटी व्हिच वी कैन बाय इन द मार्केट. भक्ति जाके 1 किलो की भक्ति लेके आ जाएंगे मार्केट से जाके, इट्स नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट बाय भक्ति इन एनी शॉप. वी कैन ओनली ऑब्टेन भक्ति by the grace of God and Guru, right? Guru and Gauranga. That's the reason हम बोलते हैं गुरु की मर्सी मिल जाए या कृष्ण की मर्सी मिल जाए तो हमें भक्ति मिल सकती है. तो what to say about कृष्णा then, है ना. तो ये गुण है भक्ति का कि हमें कहीं मिलेगी नहीं, हमको एसोसिएशन में प्राप्त करना पड़ेगा. सो इसीलिए कृष्ण सभी गुणों की खान है. There is no such guna which Krishna doesn't possess. He is in fact called the सर्वगुण संपन्न. आज के भौतिक जगत में सर्वगुण संपन्न को बहुत नेगेटिव तरीके में लिया जाता है ना. उसके अंदर सब कुछ गलत आदतों को सर्वगुण संपन्नों में जोड़ दिया जाता है. परंतु कृष्णा हैज ऑल दोज क्वालिटीज विच आर ट्रांसेंडेंटल. सारे गुण कृष्ण की क्वालिटीज में अवेलेबल है. और उन क्वालिटीज में से सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है? मर्सी. भगवद गीता के 18 चैप्टर में भी बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि 18.57 हाँ, व्हाट डज ही से, लाइक है क्या खोलो. सो ठीक है, 18.57 खोलो. देयर आल्सो ही सेज, यू नो, कि भाई कृष्ण की ये क्वालिटी इतनी है कि भाई मतलब कि जो कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण जिसको बोलते हैं ना सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है मर्सी. तो मर्सी, कृष्ण की कृपा प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है. 18.57 क्या बोलता है? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः. ना तो नहीं 5-7 पढ़ो, 5-6 या 5-7 पढ़ो. 5-6 सर्वकर्माण्यपि सदा
नहीं नहीं छोड़ो, नहीं नहीं 18.57 ही है ना। ये फैक्ट सही है। ये हुई है ना कि तुम सब काम जब जब तुम छोड़ के मेरी शरण में आ गया। नहीं नहीं वो नहीं 66 है वो तो। तुम हिंदी वाला दो ना। 55 55 हाँ मत प्रसादा तरिष्यसि वो वाला कौन सा है। मत मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। इतनी बार बोले सो लेकिन कभी भी याद नहीं रहता है। तो मत चित्त, आप चित्त मुझ में लगाओ, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, तो आप सारी तरह के प्रॉब्लम से हट जाओगे। और आपको मत प्रसादा तरिष्यसि, कैसे हट जाओगे सारी तरह के प्रॉब्लम से? मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। सो ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन मी, आई विल रिमूव ऑल योर प्रॉब्लम्स provided, and how will I remove that problems? By my mercy. By my mercy. So mercy is the biggest factor in Krishna bhakti. So to get Krishna's mercy, it is very very difficult. Okay, and that is the only thing which is, you know, if you put your step ahead, Krishna will give 10 steps towards you. So ये mercy प्राप्त करने के लिए क्या है? कृपा, मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद, yes, आशीर्वाद। मंदिर में जाते हैं। हाँ तो आप जाना पड़ेगा तभी मिलेगा। नहीं वो जो कृपा मंदिर वो जाके वो कृपा अलग मांगते हैं, मंदिर में जो कृपा मांगते हैं वो कृपा नहीं। भौतिक जगत की कृपा अलग है, ये इस जगत से बाहर निकलने के लिए कृपा है। नहीं वो जो जाते हैं प्रभु कृपा करो मेरा ये काम कर दो, तो वो भी करेंगे भगवान, वो भी करेंगे, लेकिन वो फिर कितने दिन के लिए चलेगा? तो मैं इनको कृपा का एग्जाम्पल दूं। जैसे कि आप कोई किसान है, खेती करता है, वो बीज बो देता है, अपना कर्म कर देता है, और फिर उसका फल क्या है? फसल है। लेकिन जब तक ईश्वर की बारिश नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, तब आप फसल नहीं ले सकते। तो प्रभु यही बहुत बहुत बड़ी चीज है कि when like you know if we how do we get go in the frame, अगर यदि if you get your means अपने आप को यदि खंगालोगे आप, if you like you know, तो आप पाओगे अपने इसमें सिर्फ और सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर छुपे पड़े हैं। So how can we get a chance of this go in the frame? So it is only and only because of Krishna's mercy, which will come either directly or through his representative, which is Guru. So it is only because of this we will be saved. Otherwise, तो हमारा दूर दूर तक हमको कृपा प्राप्त होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कितने लोग अब सऊदी अरेबिया में सोचे कि भाई भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बहुत है। कृष्ण की कृपा होनी चाहिए और कोई आना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, तभी वह चीज पॉसिबल होती है। तो इस प्रकार इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट कृष्ण का तो हाउ टू गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा। So today we are discussing this chapter 6, which is nothing but the highest amount of mercy which Krishna had given to through Putana. Highest amount of mercy, and this mercy factor is only on which we are banking upon. हमारी भक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस मर्सी फैक्टर पे हम चांस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी सुनना है हमें। हाउ डू वी लिसन टू द स्टोरी? सो स्टोरी गोज लाइक यू नो, जो नंद जो पहला श्लोक पढ़ा था, तो नंद महाराजा, कृष्ण का जन्म हो चुका था, कृष्णा वॉज ट्रांसफर्ड टू गोकुला बाय वसुदेव। उन्होंने यमुना क्रॉस करके नंद महाराज के यहाँ छोड़ दिया था। नंद महाराज एंड वसुदेव वेर रिलेटेड। Okay, Nanda Maharaj and Vasudev were related. So, and he was in jail. Vasudev was in jail along with Devaki. He was in. They were put in jail by Kamsa. So Nanda Maharaj came to visit Vasudev and Devaki in the jail. So when he was meeting, बहुत आराम से आदान प्रदान हो रहा था, एक दूसरे हालचाल पूछ रहे थे, कैसे है, क्या है. But then Vasudev was worried. So Vasudev immediately said, he could hear from the jail के जो कर्मचारी थे, means the outside jail, the jailers, the who were protecting the jail, they were talking that that Kamsa has called for one witch called Putana and asked Putana to go to Nandagram. So Vasudev was worried. If Putana goes to Nandagram, Putana's only work is to eat away the children. पूतना का एक ही काम है, बच्चों को खा जाना. तो
मेरा कृष्ण भी मैंने वहीं छोड़ के आया था. I have left my Krishna also there at Nand Maharaja's place. So he cannot say that, he's my son there. But he says that, he gives an advice, please rush back to Gokula. I have heard some anisht is going to happen in Gokula. तो कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, तो आप जल्दी से लौट पड़ो. सो नंद महाराजा ऑन द वे वाज थिंकिंग, भाई वसुदेव कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई उन्होंने मतलब वैष्णव है, तो उन्होंने यदि कहा है, इफ ही हैज सेड समथिंग इज प्रॉब्लम, समथिंग इज concerning which is going to come as a disturbance in Gokula, that means certainly something is going to come. So he started driving back, chariot को तेज भगा के he was wanting to go back to Gokula from from Mathura to Gokula. He was trying to go back. So that advice could not have been wrong, So certainly he thought, there is something in this advice. So there is something fear which is to be happen, and it is Krishna who is just born 6 days ago. So he started to go, and in the mean he started praying Hari. In the mean he started praying to Hari. That's why Srila Prabhupada writes in the purport that, when a devotee is in danger, what does he think first? He thinks first to take the shelter of the lotus feet of the Lord. कि किसी भी प्रकार से मैं भगवान की शरण ग्रहण कर लूं. Or especially when he was thinking, when my child is so small and if some danger is going to come on Gokul, then my children would not be safe. So, oh Hari, please save my child who is just 6 days old, will not be able to, without your Kripa, will not be able to save anything. So this is a very important factor. When you fall into trouble, first thing is we have to take the lotus shelter of the lotus feet of the Hari. Anityam Asukham Lokam, jo 9.33, which Srila Prabhupada had quoted, Bhagavad Gita ka. Anityam Asukham Lokam imam prapsya bhajasvamam. So in this material world, there is danger at every step. Padam padam yad vipadam. Har step pe aap lete ho, there is danger. Padam padam yad vipadam. So since every step we take is danger, because we do not know, we are stepping out of the house, anything can happen. We are sitting in the car, tomorrow we may have an accident. We are staying in the house, we may fall. We may go into bathroom, take a bath, but we may fall. So padam padam yad vipadam, koi bhi agla kadam hamara kya hoga, kaisa hoga, we will never know. We do not know. That is the reason we should take shelter of the Lord Hari. So in today's Putana Moksham, we will get 13 lessons. So this is the first lesson, that whenever you are in trouble, you have to take the shelter of the lotus feet of the Lord. So जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो lotus feet of the Lord का shelter लेना चाहिए. So Shukdev Goswami writes, in the after consulting with his demoniac ministers, Kamsa instructed a witch named Putana. So Putana knew the black art of killing children. है ना, बोलते हैं ना काली विद्या. Putana को काली विद्या पता थी. How children can be killed by ghastly methods. उनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से कैसा मारा जा सकता है, उसके पास ये विद्या थी. हाँ, बाल घातिनी उसको यूज किया है वर्ड, है ना, बाल घातिनी. संस्कृत में उसको वर्ड यूज किया है बाल घातिनी, कि छोटे बच्चों को कैसे घात पहुंचा सकते हैं. तो इसका अर्थ था, बाल घातिनी का अर्थ है, मींस द मीनिंग ऑफ बाल घातिनी इज दैट वन हु ड्रिंक्स द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन. Drinking blood is not that easy, right? So drinking the blood of your children, human beings, which is we cannot think of, but Putana was expert in that, drinking the blood of children. इसीलिए उसको बोला है बाल घातिनी. And where she used to live? She used to live in the outer space. अब जैसे भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक है ना, भूअरलोक के अंदर ये यक्ष, पिशाच, भूत, ये सब लोग रहते हैं. So रहती थी, she was staying in the outer space and was always wandering in the sky. आकाश में विचरण करती रहती थी. और उस रूप में एक दिन उसने गोकुल एंटर किया था. हाँ, और उसने गोकुल एंटर किया था कैसे? एक बहुत ही सुंदर स्त्री का वेश धारण कर कर. She took a disguise of a beautiful woman and entered Gokula. So he writes, Shukdev Goswami writes, Sakhechari etotpadya Putana Nanda Gokulam.
स खेचरी एतोत्पाद्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्रविश्यात कामचारिणी. He is addressing Putana. So he writes Khechari. Khechari means Khe means one who can fly in the sky. Khechari means one who can fly in the sky. And Sa Khechari etotpadya. And she knew one witchcraft which. And क्या कुछ कम करूं? Okay. कम करना है तो नहीं? Okay. So she knew a witchcraft which is practiced even today in some parts of India and other places. Like, witchcraft is something, मूठ मारना, किसी को है ना ये, किसी के ऊपर ये कर देना, है ना, कि आप कहीं जा रहे, मीन्स लाइक, किसी को कहाँ बुला लेना, किसी मृत आदमी को बुला लेना, आत्मा से बुला लेना, ये करना, ये जो विद्या है, ये इस प्रकार की तामसिक विद्या है. सो ये विद्या अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कभी चलती है. आप जाओगे, आपके जैसा एक कोई खड़ा करके आपके पीछे भेज देंगे आपके घर को. हाँ. तो मूवीज आर एग्जांपल व्हिच गिव दो. तो आज गला बैठ रहा है, पता नहीं. ये तो रियल है ऐसा. तो वो इतना डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ऐसा आपको दिखाने के लिए थोड़ी दिया, सब कुछ रियल हुआ है, तो इसलिए एक एक वर्ड कैप्चर किया है सुखदेव गोस्वामी ने. तो ये स खेचरी अभी भी होता है, ये तो अभी भी होता है इनफैक्ट. हाँ होता ही, वही इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ. तो ये क्राफ्ट अभी भी इंडिया, सम पीपल कैरी ऑन दिस विच क्राफ्ट एंड दे कैन ट्रांसफर देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कैन अपरूट अ ट्री, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट. सो Putana knew exactly this such kind of witchcrafts, and therefore she is described as खेचरी. जो इस प्रकार की, हम बोलते हैं ना खेचरी है, तो ये इस प्रकार की काला जादू करना जानती है. So listening to this text, जैसी कोई ऐसा बोला कि listening to this text, Shukdev Goswami was listening. Shukdev Goswami was listening to the story, because this is said as in Bhagavatam. It is said by Shukdev Goswami is saying to Parikshit Maharaj. The moment Shukdev Goswami said this, Parikshit Maharaj suddenly got up from his seat. Like, he was sitting and listening, and suddenly he got a jolt of his life. Like, somewhat, means like, somewhat disturbed. What will happen? What's going on? What's going to happen? This Khechari is entering Gokula, because till this is 6th chapter. Till the 5 chapters, Parikshit Maharaj had heard the birth of Krishna, and he was transferred to Gokula, and he was very happy. But suddenly when he heard about Khechari, he got suddenly worried. And you also experience this, right? क्या होगा आगे? कभी कभी स्पेशली माता जी ने पिक्चर का याद दिलाया, तो पिक्चर से ही बोलता हूँ. सभी लोगों ने पिक्चर देखा होगा, तो पिक्चर में कभी कभी आपको दिखाते होंगे कि हीरो भागते आ रहा है, कहीं भागते आ रहा है, सडनली पहाड़ों के ऊपर से भागते आ रहा है, और सडनली एक सामने क्लिफ आया, और उस क्लिफ को देख के एकदम ऐसे रुक गया, और आपका दिल एकदम अटक गया, वो जाके गिर जाएगा. ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है. स्पेशली आप कुछ वो 3D पिक्चर देखा होगा, तो आपको तो बिल्कुल ही डर जाता है कि आंखों में आके गिरता है, कोई पत्थर आके सीधा अपने ऊपर गिर रहा है ना. तो या फिर कोई आपके पीछे शेर भाग रहा है, आप नींद में, सपने में सोच रहे हो शेर भाग रहा है मेरे पीछे, मैं भी भाग रहा हूँ, मैं बहुत बचने की कोशिश कर रहा हूँ, शेर आके एकदम आपके ऊपर कूद जाता है, और आप जोर से करते नींद से उड़ जाते हो. कितने लोग उठते हैं? कितने लोग उठते हैं कि नहीं? तो क्या है फिर, क्या सही था? आपका चिल्लाना सही था या नींद सही थी? चिल्लाना सही था, है ना? चिल्लाना तो सही था, है ना? तो दिस इज द फीलिंग आई वांटेड टू गिव यू, कि लाइक वो जो सपने में देख रहा था वो सही नहीं था. ओके, वो सपने में जो देख रहा था वो कुछ सही नहीं था, बट उस सपने के प्रभाव के वजह से वो चिल्ला के उठ पड़ता है. सपने के प्रभाव से कोई चिल्ला के उठ पड़ता है, तो उसका चिल्लाना तो सही था, है ना? तो वैसे परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे कि खेचरी ने गोकुल में एंट्री ले ली है, द मोमेंट खेचरी हैज एंटर्ड गोकुला, ही इमीडिएटली गॉट परटर्ब्ड. उसको एकदम वही तरह का फीलिंग हुआ जो नींद से उठ के डर के जागने का जो होता है, तो उस प्रकार. तो जैसे ही वो ऐसे हो गया कि वो पूछना चाह रहे थे परीक्षित महाराज को अब क्या होगा, तो सुखदेव, परीक्षित महाराज पूछना चाह रहे थे सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि डोंट वरी, क्योंकि मगन होकर सुन रहे थे इसलिए उनको वो फीलिंग आ गया. तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि डोंट वरी अबाउट इट. Wherever people perform their occupational duties or devotional service by chanting or listening to Hari
or Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, if these three things they do, there cannot be any danger of any evil events at their place. है ना? यदि आपके घर में आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान की भजन करते हो, भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है वहां पर ये खेचरी के काले कार्य काम नहीं करते हैं. तो this is a second lesson for you all, that if you are taking the name of the Lord Hari, Supreme Lord, and when you are chanting his name, all these demonic powers will not work at your place. Even if they work, they are just for a second, क्षण के लिए, कुछ क्षणिक मात्र, कुछ समय के लिए. तो बोलते हैं भूत आ गया. जहां भगवान का नाम चल रहा होगा वहां पे भूत का आने का सवाल होगा ही नहीं. इसीलिए पहले के जमाने में कहते थे अपने घर में भगवान की आरती करो, भगवान का नाम लो, भगवान को भोग लगाओ, सब में भगवान का माहौल रखो, ताकि ये भूत प्रेत का बाधा अपने ऊपर बने ना. अब आजकल तो हमें भूत प्रेत देखने नहीं मिलते है ना, भूत प्रेत हमें देखने नहीं मिलते, परंतु ये विचक्राफ्ट पहले था, और आज तो वो भी डरते हैं. तो कहीं ये हमको मिल गए तो ये हमको पकड़ के पीट न दे. आजकल तो भूत प्रेत डरते हैं. तो खैर छोड़ो, विल नॉट गो इनटू दैट. बट कहने का तात्पर्य, दीज आर सम विचक्राफ्ट्स व्हिच आर अवेलेबल, बट व्हेन यू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड. इसीलिए देखते हैं ना, कभी भूतों की मूवी देखते होंगे आप, तो क्या होता है, भूत को पकड़ के हनुमान चालीसा सुनाना शुरू कर देते हैं और वो भूत भाग जाता है ना. एक दो मूवीज वैसे भी आई हुई है. तो जहां पर भगवान का नाम लिया जा रहा होगा, दिस इज सेकंड लेसन, दैट this evil witchcrafts and all those will not work for long at that place. So Putna arrived in Gokul, wandering in the sky. That was fine, but how did she look like? So that is also described in Bhagavatam. अब आप बोलते हैं क्या रियल है क्या, ये चीज described in Bhagavatam. So Putna was कैसे दिख रही थी, how was Putna looking in her appearance? That is described in Bhagavatam. So like एक सीधी सी लैंग्वेज में यदि कोई बोले, तो ये मेरा बोला हुआ नहीं है, महाराज लोग और बोले हुए हैं, तो मैं वो बोलूंगा कि लाइक पूतना कैसी दिख रही थी. तो आज के युग में पूतना को यदि देखना है, तो आज के युग में कोई बुरा मत मानना, लेकिन ये मैं जो शास्त्र का वर्णन है वैसे बता रहा हूँ. लेकिन आज के युग में यदि कोई स्त्री ब्यूटी पार्लर में 4-5 घंटे बिता के बाहर आती है तो कैसी लगती है, तो वैसे लग रही थी, वैसे लग रही थी. बाल पूरे क्या बोलते हैं, ग्लॉस किए हुए, रेड कलर के ग्लॉस किए हुए, उसके अंदर जो गोल्डन कलर के ये किए हुए, उसके ऊपर रेड कलर के शेड्स दिए हुए, है ना. तो बाल जो ऐसे आजकल बनाना पड़ता है, लेकिन पूतना के वो नेचुरल थे. तो और सारे बिखरे हुए. ब्यूटी पार्लर हम सजने धजने के लिए लेते हैं, लेकिन आप देखते हो कि वो उल्टा ऐसा ऐसा गोल गोल करके और जो सो बिखेर देते हैं. ठीक है, तो बिखेरे हुए बाल, और उसके ऊपर येलो कलर, पूरे पीले कलर के बाल, उसके ऊपर गोल्डन के झाई. हाँ, और गोल्डन झाई के बाद में कास्टिंग बोलते हैं ना, मतलब उसको कास्टिंग करा हुआ, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे नाखून, और उसके शार्प एज. ऐसा नहीं कि एकदम, हम तो आज उसको उससे करना पड़ता है हमको शार्प एज, लेकिन वो ऐसे, और नेचुरली वो शार्प एज, और पूरे कौन से कलर के, रेड कलर के. हाँ, जैसे आजकल नेल पेंट लगाते हैं ना, तो उसका नेल पेंट क्या था, बच्चों का खून, नेचुरल नेल पेंट, बच्चों का खून. हम तो प्लास्टिक के नेल पेंट लगाते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, परंतु उतना क्या लगा रही थी, वो बच्चों का खून, है ना. तो इस प्रकार रेड, ब्लड रेड. तो ये मैं नहीं, ये बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, एक एक श्लोक लेंगे तो बहुत बहुत समय लग जाता है, इसीलिए मैं समरी लेके आप लोगों को आज ये उसका लीला बता रहा हूँ. सो सच एल्यूसिव मॉन्स्ट्रस पूतना changed her form into a nice गोपी. सुंदर सी गोपी ड्रेस पहन के, घाघरा चोली जो बोलते हैं ना, घाघरा चोली पहनकर सुंदर सी गोपी बनकर वो मथुरा गोकुल में घुस गई. गोकुल का एंट्रेंस रहता पहले, एवरीवेयर देयर यूज्ड टू बी एंट्रेंस ऑफ द विलेज, राइट. सो शी एंटर्ड गोकुला. So Sukdev Goswami has described her disguise in many verses. She was wearing gopi dress, उसको गजरा लगा रखी थी, मालती के flower. She was wearing the malti flower in the hair. She was having a beautiful long earrings, the kanti mala in the neck, and there was very beautiful urdhva pundra tilak, जो हम लोग सभी लगाते हैं ना. So that kind of tilak she was wearing, and she was having a lotus in her hand, and she was wanking while she was walking, and she was glancing at everybody. Whoever was walking in the Gokula, she was just wanking
ऐसे ऐसे नजर करके उनको देख रही थी, and smiling at all the residents of Vrindavan. So Vrindavan, where all the Vrindavan Vasis were captivated by her looks. Like they thought, she is looking Sakshat Lakshmi. So Lakshmi has entered Vrindavan to meet Narayan. So Narayan से मिलने लक्ष्मी आई है. So आचार्य बताते हैं, like देखो वृंदावन वासियों का भाव कैसा है. How Vrindavan Vasis mellows are. That even for a witch like Putana, who has come in the disguise of Gopi, they are looking that that they are looking as every female who has entered with such a beautiful features as the bhava of a Lakshmi. लक्ष्मी तो जब एंटर करती है तो सबके घर में पैसा वैसा भर जाता है, धन धान भर जाता है. ब्रजवासियों का ये कि भाव देखो कि भाई वो इवन डेमन, दे आर थिंकिंग दैट दिस डेमन हु इज इन द डिस्गाइज्ड फॉर्म इज लाइक ए ब्रजवासी. So is like a Brajvasi. So whereas Brajvasis उनका भाव, और whereas हमारा भाव क्या रहेगा? यदि कोई ऐसा सज धज के हमारे बाजू आके बैठ जाए, तो एक्चुअल लक्ष्मी जी भी आके बैठ जाए, तो हमको लगेगा ये कौन से नाटक कंपनी से आ गई है, कहीं चोरी करने नहीं आई है, या चोरी का सामान तो नहीं उठा के लाई है, गहने वहने. तो ये हमारा भाव ये रहेगा. हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि लक्ष्मी हमारे पास आके बैठ गई है ना. तो ये ब्रिजवासियों का भाव देखो. That's why Brijvasis moods are very higher moods. That even a demoness, they are thinking that she is Lakshmi, whereas we, even Lakshmi comes and sits beside us, we'll think she is some thief or somebody, that maybe she has done all this theft, wearing all this heavy bangles and all those. So that is the bhav. So actually that is what bhav is also represented in Bhagavad Gita in 5.18. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवा शुपाके चा पंडिता समदर्शिना. चाहे हाथी हो, if be it an elephant or a plant or a human being or an animal, anybody, all are alike. Pandita Samadarshina. Everything has a soul within it, and that soul is none other than Krishna himself, Paramatma. So that is where the equal vision, the bhava of equal vision is being demonstrated by Brajvasis. That is a lesson to us. That is a lesson to us. That we should also not discriminate. Oh, he is Indian, he is American, he is Pakistani, he is Saudi. No. After all, we are all human beings first. Right? We are all Homo sapiens, we call it. No, we are all human beings first. And within the human beings, we should, what kind of blood we have, same kind of blood the other guy also has. Okay, the differences could be on account of living and, habits and all those. But Samadarshina, so all this, the sannyasi and all those will have the same kind of Samadarshina. That, this is the vision which even Brajvasis have. That whoever has come, they see it in the form of Narayana and Lakshmi. Abhi koi atithi hamare ghar pe, atithi devo bhava. Why do we say in India? Like, whoever comes to our house, we used to, that bhava used to be that ये जो आए हैं, ये नारायण और लक्ष्मी के रूप में आए. कोई नई शादी होने वाली होती है, जोड़े को हम घर बुलाते हैं. We call new, supposed to be married, किसी लड़की की शादी होने वाली, लड़के की शादी होने वाली, हम लोग उसको खाने पे घर पे बुलाते हैं ना. खाने पे घर पे बुलाते हैं, खाना खिला के उसको दे के भेजते हैं, ताकि शादी के पहले आके जाए एक बार. राइट? आप लोगों ने भी किया ही होगा, अभी सभी लोग करते हैं. What is the bhava behind it? कि भाई, क्योंकि जब शादी होती है तो वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इसलिए राजा बनते हैं ना, दूल्हे राजा दुल्हन जो बनती है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होती है. तो लक्ष्मी नारायण, अब ये लक्ष्मी बनने जा रही है, तो उसको हमारे तरफ से एक बार प्रसाद खिला दो, और उसके बाद में उससे एक प्रकार से आशीर्वाद ले लो कि भाई जैसे तेरी शादी हुई है वैसे ही आगे चल के हमारे बच्चियों की भी शादी हो जाए. ऐसा कर ये भाव से किसी को बुलाया जाता है कि भाई इनकी निपट गई, अब हमारे भी पीछे निपट जाए, तो ये अच्छा साया हमारे ऊपर गिरे. तो उस प्रकार का इक्वल विजन, so that kind of equal vision we should also have. Brajvasis are giving us that example, but we do not have, right? So this was the third lesson which I said. Okay, now the Putana entered Gokula, we said, and after Gokula she entered, walking on the streets, blinking everybody, giving everybody nightmares. She walked up to Nanda Maharaja's palace. Okay, and Nanda Maharaja, and when she entered, Maya Yashoda was there. Okay, so Maya Yashoda, Rohini, and some other helpers were swinging Krishna
Okay, where in the swing, Krishna was on the swing and they were swinging. And then when she entered, with a very sweet, loving voice, she said, Mother Yashoda, can I serve Krishna? So Mother Yashoda looked at her and she was also impressed because she was wearing such a nice dress as if Lakshmi herself has come. And she said, yeah, you can take care of her. Anyway, I have some work. I have to leave. मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ. ऐसा कहकर वह निकली. Okay, वह निकली और पूतना came in front of Krishna, who was just sleeping in the swing. He was not sleeping, he was just in the swing and they were just swinging. So she said, can I serve? In that way that she wanted to swing Krishna. And Mother Yashoda and Rohini had so much of work because 6 days work and so many things are there and they have to prepare for so many things. So they left. And Putana, Krishna was sleeping in the swing and she came forward. So ऐसा धीरे धीरे swing के पास आई. तो Shukdev Goswami writes in Srimad Bhagavatam कि Krishna, the moment he saw Putana near the swing, he immediately closed his eyes. Sanimilita ikshana. Immediately Krishna closed his eyes. So Putana आई है उसको serve करने और immediately Krishna closed. Why did he close the eyes? Anybody? Why did he close the eyes? So there are various reasons which is given in Shastra. Some of it I'll give you. So you know why this is more important. So Krishna thought, my whole purpose, I said this last time also, my whole purpose is paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I come here to kill the miscreants, okay, establish dharma, okay, protect the sadhu. And the same Shastra says that woman has to be protected. Okay, last Bhagavad Gita shlok we took that, right? So woman has to be protected. She cannot be killed. So that is what in same thing. So and I have to open my innings killing this witch. I had to do the same thing during Ramayana. I had to kill Tadaka, the woman first. And now here again, this woman has come in form of Putana. Okay. I will close my eyes. She will think that I have slept and then she will go off. That is one of the reasons. That is naive reason. Okay, very small reason. That Krishna thought that if I just close my eyes, she will think that I have slept and he will leave. So that was first reason. Second reason, Putana came with an intent of deceit to see Krishna. Okay, she came with an intent to kill because she had been killing all various children and coming here. And she had come in the disguise of a gopi. So whoever goes to Krishna with a good intent, Krishna, looks at him. If you are going to Krishna with the Patram Pushpam Phalam Toyam, so Krishna will also, Prema, if you go with Prema to Krishna, he will also look at you. But if somebody is going with an intent to kill him, he will naturally not like it. So he closed his eyes. मुझे देखना नहीं है. One of the reasons where acharyas are explaining to get the mellow. Okay, to get the mellow. Okay, we understand Krishna is anyway crooked. Krishna तो वैसे ही बहुत चालू है क्योंकि त्रिभंगा ने खड़े भी टेढ़े रहते हैं, सीधे खड़े नहीं रहते हैं, तो टेढ़े ही है, स्वभाव से भी टेढ़े हैं. हाँ, सब चीज उनका टेढ़ा है ना, 3 जगह. Krishna is curved. His nature is also curved. Okay. So we understand Krishna. So might be his close, but think about Rama. Think about Rama. What did he say in Sundarkand? Nirmal janman so moi bhava mohi kapat chal chidra na bhava. Nirmal janman so moi bhava mohi kapat chal chidra na bhava. That means I will be visible to, I can see those person who are very nirmal at heart, who are very soft at heart. निर्मल जन मन, उनका मन भी निर्मल हो और जन भी निर्मल हो, तो मैं सो मोही पावा, मैं उनको मिलता हूँ. When विभीषण मिलने आए थे उनसे, तो बाकी सभी लोग बोले कि विभीषण is Ravana's brother, he might have come to take some information or kill us, we have to be careful.
So then Rama says, Nirmal Janman Somi Bhava. So in front of me, nobody can come who is with kapati. जो कपट से भरा हो, he can never come in front of me. So who is come with the wrong intent can never come in front of me. Mohi kapat chal chidran bhava, because I don't like that. So people will know that, if they are coming with an intent of wrong disguise, I will not listen to them. So he is coming with a good intent. That's why Sharanagat Bachchala Bhagwana. He's come as a Sharanagat, so we'll have to bring him inside. So that is where, so you can understand Rama, who is so nice, actually मीन्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलने वाले भी कह रहे हैं कि निर्मल जनमन सोमय भाव, कि मुझे छल कपट से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, मुझे सिर्फ प्रेम से ही प्राप्त कर सकता है. कृष्ण भी यही बात बोल रहे हैं ना, क्योंकि है तो दोनों एक ही, तो दोनों भी जो भाव प्रकट करेंगे कोई गलत नहीं रहेगा. तो इसीलिए यही सेम चीज साधुओं की रहती है. साधुओं को कि कुछ भी, जैसे महाराज आए थे, गुरु महाराज रहते हैं ना, एवरीबडी गुरु, they don't think that this person has come to harm me, this person has come to they look everybody with equal vision. So the question here is, if the sadhu knows that he's come with an intent to kill me, still he will not run away. He says, okay, if Krishna wills to kill me, okay, he will have that kind of feeling. Okay, for some purpose we may have to run. That's why Srila Prabhupada had also to run, because his disciple had come to kill him. So he had also to run for his life, because he wanted to preach Krishna consciousness. So if we think our life is that great, so if Krishna is already decided to kill us there, okay, then, but we have to try our level best. So the lesson here is that, Krishna will ignore to those persons who are of deceitful mentality, and he will never tolerate such kind of behavior. So for us, that fourth lesson is, our behavior should be equal vision and should not be with the intent of deceit anybody. We will not, do harm to anybody. किसी को हम धोखा देना चाहिए, ऐसा intention नहीं है. जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ में हरदम धोखा दिया. They always wanted to deceive Pandavas, right? So Krishna will never like such kind of people, and that is why दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर पारायण. क्यों? दुर्योधन की mentality cheat करने की थी, so which Krishna will never ever like. So blaspheming Vaishnavas, that also comes under that category. So we should never blaspheme any Vaishnava. तो ना वैष्णव अपराध जो बोलते हैं ना हम लोग, कई बार वैष्णव के प्रति अपराध करना चाहिए, तो ये this also comes under that. So Krishna never tolerates वैष्णव अपराध also. तो क्या बोलते हैं ना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए वैष्णव, इसलिए क्योंकि हर एक के हृदय में कृष्ण है. तो तीसरा कारण, दो कारण हो गए और ये चौथा रीजन हो गया. फाइन. तीसरा कारण है, पूतना अविद्या को रिप्रेजेंट करती थी. ओके, और अविद्या विद्या के सामने खड़ी नहीं रह सकती, और कृष्ण साक्षात विद्या है. कृष्ण साक्षात विद्या है, क्योंकि सारे वेदों के ज्ञाता. 15वें अध्याय में वे कहते हैं, he says in 15th अध्याय of Bhagavad Gita that I am the compiler of Vedas and knower of Vedas. So he is Vidya and Putana is avidya. So विद्या के सामने अविद्या खड़ी नहीं रह सकती. तो इसीलिए तो है ना भाई, ठीक है, ये आई है, चली जाएगी, छोड़ो. अविद्या आई है मेरे सामने, अगर उसको लगेगा कि मैं विद्या वाला हूं तो कुछ ग्रहण करना है तो करेगी, नहीं तो चली जाएगी. वन ऑफ द रीजन. दूसरा, इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप विद एनीबडी, हाउ डज इट हैपन? थ्रू आई कॉन्टैक्ट. ओके, इवन people of no eyes also have relationship, but the question is, if you have to develop a relationship with the other person, first is eye contact and then is speech contact, right? First is eye contact. So मूवी में भी यही दिखाते हैं ना भाई, लड़के ने लड़की को देखा और ये हो गया और वो हो गया, है ना. देखना important है. So seeing is more important. So you develop a relationship just by seeing. So what is our eternal relationship? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास. So we have to understand that relationship. So Krishna thought, if I don't look at her, I will not be able to establish relationship with her at all only. Simple. These are all very naive reasons, but then these are reasons which we have to see in life. कि अपने किसी से संबंध बनाना है तब हम नेत्रों से ये बात करते हैं, परंतु पूतना को उन्होंने देख के आंखें बंद कर ली, अर्थात पूतना से उनको कोई संबंध बनाना नहीं था. ओके, तो अपना एटर्नल संबंध होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. तो हमें जो है सो अपना संबंध कृष्ण के साथ रीएस्टैब्लिश करना है. यही हमारा
लेसन है. So Vidya, fifth lesson was Vidya cannot stand against Avidya. Okay. Avidya cannot stand against Vidya. That was the fifth lesson from today's class. And sixth is, our original Swarup is to understand Krishna. He is our eternal father and we are his eternal servants. Okay. So हमसे उनका संबंध बनाना है तो हमें उनको देखना पड़ेगा, उनके बारे में सुनना पड़ेगा, सुन के देखना पड़ेगा, तभी हमारा संबंध भगवान के साथ बन सकता है. और एक और, कृष्ण अंतर्यामी है, सब जानते हैं. तो कृष्णा न्यू दैट पूतना हैज कम बाय अप्लाइंग कालकूट पॉइजन ऑन हर ब्रेस्ट. कालकूट नाम का विष अपने स्तन पे लगा के आई है. सो वो आंखें बंद करके सोच रहे थे, by closing eyes, Krishna was thinking, I eat milk and curds, and she has come with a kalkut poison. So he was thinking about Shiva. Shiva, your favorite food has come. Your favorite food has come. But I am specialized in eating milk and curds, but you are specialized in eating vish. So she has come with the kalkut vish on her body. So you drank the poison. कृष्ण ने कालकूट को पिया था. कब पिया था? समुद्र मंथन, हलाहल. हलाहल नाम के विष को पिया था समुद्र मंथन के लीला के समय में. सो शिवा हैज ऑल द प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग ऑल काइंड्स ऑफ विष. कितना भी पॉइजन दो और वह पॉइजन को यहाँ रोक लेते हैं. पुण्य भी जरूरी नहीं है, गले में ही रोक लेते हैं. नीलकंठ महादेव. सो नीलकंठ कहलाते हैं. तो सो एंड but Shiva drinking the poison gives us an example that, for the benefit of the world and for the Lord to do the purpose, he will always come and drink the poison whenever required. क्योंकि जब हलाहल विष फैल गया था तो कोई पी नहीं रहा था उसको, और उसके बिना आगे का कार्य हो नहीं रहा था. तो सभी लोगों ने पूछा किसके पास जाए, तो शिवजी ने बोला कि बोले शिवजी के पास जाओ, वो पी. तो शिवजी ने पूरे हलाहल विष को पी गए थे. तो ऐसे ही वैष्णव, इसलिए उनको कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभो. वैष्णव में सबसे अग्रणी स्वयं शिव जी है. इसलिए उनके नाम से एक संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय. जो श्रीनाथ जी संप्रदाय है राजस्थान में, वह रुद्र संप्रदाय के है. श्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजस्थान में, श्री कृष्ण शरणम मम जिसको बोलते हैं, नाथ द्वारा. तो ये रुद्र संप्रदाय पर समर्पित है. तो वैष्णवा नाम यथा शंभो. So Shiva gives a lesson that, if you have to serve the Lord, okay, you will get benefits, but you will get poisons also. Like, in your daily activities of life, you can have milk, fruits and everything offering Krishna, you can have at home. But when you go out, public will give you a lot of poison. है ना? ऑफिस में बॉस जाते पहले ताने मारेगा, ये लेट आ गए, ये काम नहीं हुआ, ये रिपोर्ट नहीं बनी, वो रिपोर्ट नहीं बनी, होल डे ये खाना बनाया नहीं, वो खाना बनाया नहीं, दिन भर जो. So he gives an example that, we will have to drink such kind of poison in our daily life so that the work of Krishna goes on safely. तो वो जो समुद्र लीला, क्योंकि उसके अंदर मोहिनी अवतार लेके कृष्ण को ही आना था, तो उस लीला को करने के लिए पहले विष शिव जी को पीना पड़ा. तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में भगवान की सेवा करते करते वी में हैव मेनी प्रॉब्लम्स. उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमको दुनिया भर का विष पीना पड़ेगा और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा. और एक और रीजन है कि कृष्ण ने पूतना को अपनी नर्स माना, क्योंकि वो दूध पिलाने आई थी, तो नर्स माना. तो 7 प्रकार की माओं का जिक्र है, हमने पहले भी जिक्र किया था, है ना? कौन सी है? एक तो खुद की मदर, दूसरी राजा की पत्नी, फिर गुरु की पत्नी, उसके बाद में गौ माता और धात्री, ये जो नर्स, और पृथ्वी, और एक और है, कौन से है? क्या? नहीं 7 हो गई. एक तो खुद की माता, फिर राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, गौ माता, पृथ्वी और धात्री नर्स, एक और है
एक और है मदर, ये जो कृष्ण की पत्नी माता क्या? लक्ष्मी माता, नहीं 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 नहीं, गुरु owns mother, owns mother, wife of a guru, wife of a brahmana, wife of a king, the cow, ब्राह्मण नहीं बोला, ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी भी माँ होती है। तो ये धात्री बन के आई है मेरी, नर्स बन के आई है, धात्री जो बोलते हैं, क्योंकि जब बचपन में क्या होता है, दाई रहती थी ना, दाइयाँ ही काम करती थी मदर के पास रहने का। कभी कभी बच्चे को दूध पिलाना है तो दाई भी पिला देती थी, है ना। आज के डेट में उसको बहुत बुरा मान लेते हैं, पहले के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और धात्री का भी पी ले रहा है, कोई भी घर में बड़ी औरत है उनका दादी का भी पी लेता है, मीन्स लाइक पहले ऐसा इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था। आजकल तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है ना, अपना ही नहीं तो फिर डबेगा। परंतु 7 प्रकार की माँ बताई गई, इसलिए गाय का दूध भी बोला गया कि गाय भी माँ की कैटेगरी में, कि वह भी अपने दूध से बच्चे का पोषण करती है। तो इसीलिए तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। तो जनरली फिर जब माँ के सामने आते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं बच्चे जब, तो और 7वां आखिरी रीजन मैं बोलता हूँ, ऐसे तो बहुत रीजन है कि ही द लास्ट रीजन वाज विद लाइक, अब प्रियल और बाहर जाएंगे तो क्या, बाहर जा रहे हैं तो मम्मी क्या बोलेगी, बाहर का खाना मत खाना, बोलती है नहीं बोलती है, बाहर का चॉकलेट मत खाना, क्यों, उससे पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना, अनवांटेड चीजें मत खाना, बोलते हैं ना। तो वैसे ही कृष्ण ने सोचा कि भाई मैया यशोदा तो दूध पिलाने के लिए रेडी रहती है, घर के दूध आइटम खाओ बोलती है, और ये पूतना आई है कालकुट विष लेके आई है अपने स्तन पे लगा के। तो ये बाहर का प्रोडक्ट है कालकुट विष, है ना, घर का प्रोडक्ट नहीं है, घर में कोई विष नहीं रखता है, nobody keeps poison at home, right? So she has brought an item which is from outside, so I should not have outside food। हम बोलते हैं ना, इसलिए भगवान को ऑफर करो, घर में बनाओ और खाना खाओ, और ये बाहर की चीज लेके आई है वो खाऊंगा तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर उसीलिए जो है सो मैं अगर मैं मुझे खाना पड़ेगा ये खिलाएगी तो मैं ऐसे करता हूँ, आंखें बंद करके प्राणायाम कर लेता हूँ, अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा, तो ये पॉइजन वाइजन खाऊंगा तो मुझे कुछ होगा नहीं, है ना। अभी आप देखते हो आजकल के योगी लोग यही सिखाते हैं, अनुलोम करो विलोम करो, ठीक है, शरीर अच्छा बनाने के लिए, नो डाउट अबाउट, we have to do okay, that's a yoga process to start with। So he was started meditating that, okay, so whatever could be the reasons, he closed his eyes, so very important, he आंखें close करना। So Putana comes to Krishna and Shukdev Goswami just says, as no one knows, यदि कोई अग्नि जल रही है कोयले के अंदर और कोयला ऊपर से राख से ढका हुआ रहता है, nobody knows, like a burning coal is inside and over it is the white ash, nobody thinks that it is very hot। if somebody puts a hand in that कि भाई ऊपर राख है ठंडी होगी सोच के यदि कोई हाथ डालता है तो जल के उसके हाथ अच्छे खासे जल सकते हैं। तो नॉट रियलाइजिंग दैट साक्षात काल मेरे सामने आया है। काल क्या, इनफैक्ट महाकाल, द पर्सन हु इज स्लीपिंग इज ए महाकाल हु कैन किल मी। नॉट नोइंग दिस, पूतना forwarded her hands so that she can lift Krishna, take in her lap and give Krishna the milk, and when he drinks milk, Kalkut poison will act and Krishna will be killed, so that with that intent she took Krishna in her hands, not knowing that he is Sakshat Mahakal। कोयले को, जलते हुए कोयले को जैसे उसने अपने हाथ में ले लिया है, as if a burning coal she lifted in her hands, so that was the thing। so Krishna not know, and Krishna also okay, जब कोई प्रेम से कृष्णा को कुछ ऑफर करता है तो कृष्णा ले लेते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति से कोई ऑफर करता है तो उतना भले ही वो डिस्गाइज में थी, बट शी टुक, प्रेम से उसको उठाया और कृष्ण को दूध पिलाने के लिए ले गए अपने जो से ली। तो वो कृष्ण भी जो है सो आराम से दूध पी रहे थे और कालकूट भी पी रहे थे, और कालकूट के साथ साथ उसके प्राण वायु को भी पी गए, प्राण वायु को भी पी गए, खींच लिया प्राण को भी। तो अब जैसी कृष्ण उसके प्राण को खींच रहे थे, दूध के साथ साथ उसके प्राण को खींच रहे थे,
और वो जोर जोर से चिल्ला पड़ती है, हाँ? तो श्लोक आता है, समुंच मुंचलम इति प्रभाषिनी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि, नमो समुंच समुंच, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। समुंच मुंच मुंच बोल के 2-3 बार बोलती है, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। मुंच का मतलब है मुझे छोड़ दे। तो इस प्रकार जोर जोर से जो सो वह चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कृष्ण जब मिल्क ले रहे थे तो वे जब प्राण वायु खींच रहे थे तो कुछ जो हम बोलते हैं ना, सम वाइटल फोर्स इज देयर इन आवर बॉडी, दैट वाइटल फोर्स के वाइटल पॉइंट्स को पकड़ के भी वे खींच ले रहे थे। So he was taking those vital points so that that vital force comes out of her body and she gets. So the moment, like ordinary, कुछ छोटी सी मार लग जाती है हमको तो हम जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन, कितने लोगों ने एक इंजेक्शन डालना है, डॉक्टर डालता है तो आंखें बच्चे कितने चिल्लाते हैं ना। तो उसका लाइफ फोर्स जब निकल रहा था तो ऐसे जब प्राण निकलते हैं बॉडी से तो 10,000 बिच्छुओं का डंक लगता है, इतना पेन होता है। तो कभी कभी व्यक्ति के मुख से आवाज तक नहीं निकलती है, उतना पेन के मारे। तो वो उस प्रकार का पेन उसको हो रहा था। तो ऐसा कर दे, इतनी जोर जोर से, इसलिए जो है वो चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और हमारे सुप्रीम लॉर्ड है कृष्ण, किसी को पहले तो पकड़ में आते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ कृष्णा, सो वेयर विल ही लीव? ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच कृष्णा। गेट अप एट 4 o'clock, attend Mangal Aarti. Prabhu is attending Mangal Aarti for every last 3-4 days. So, attend Mangal Aarti and, do 16 rounds of japa, read Bhagavad Gita, Bhagavatam, read, associate with the devotees, and then, perform austerities like Ekadashi, Janmashtami, all the festivals, all those you have to associate, right? All those things. Then you think, Krishna is coming to me. तब जाके ऐसा होता है, हमने आज कृष्ण की पूजा की, है ना? So, और ठीक है, कृष्ण भी आपको इतना सब तड़पाते हैं और आपको कृष्ण का ज्ञान देते हैं, और एक बार कृष्ण ने आपको ज्ञान दे दिया और आपको पकड़ लिया जीवन में, फिर आपको छोड़ते नहीं। तो वैसे ही है, पूतना तो पहले तो आंखें बंद कर ली कि पूतना चली जाएगी, वो गई नहीं। और जब दूध पिलाने लगी तो उसके पॉइंट्स को, वाइटल पॉइंट्स को खींचने लगे, वाइटल फोर्स बाहर निकलने लगा, तो छोड़ो 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 करने लगे। अब कृष्ण एक बार पकड़ने के बाद कहाँ छोड़ते? छोड़ते ही नहीं है। तो कृष्ण ने और जोर से वाइटल फोर्स खींचना शुरू किया, एंड द पेन इंक्रीज्ड एंड द राक्षसी स्टार्टेड शाउटिंग, एंड नाउ शी कुड नॉट बी इन हर ओरिजिनल गोपी, आई मीन कुड नॉट बी इन हर गोपी रूप जो उसने बनाया था। शी स्टार्टेड कमिंग इन हर ओरिजिनल फॉर्म एंड शी रैन आउट ऑफ द हाउस, and she ran and and telling samunch karte, she started running, and as she started running her size also started increasing, and she's running till the point, like she was almost out of Gokula. She was out of Gokula, and then she entered one big garden which was owned by Kamsa. कंस का गार्डन था वो। तो कृष्ण ने देख लिया अब ये कंस का गार्डन आ गया, चलो इसी को खराब करना है। दैट टाइम पूतना केम टू हर फुल लाइफ साइज, है ना, 12 किलोमीटर लंबी थी, ऑलमोस्ट 20 माइल्स, 12 माइल्स लंबी थी, 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर लंबी हो गई, उतनी लंबी हो गई थी। और तब कृष्ण ने देखा कि ये बराबर उसके गार्डन में आ गई है, तब आखिरी प्रहार किया वहां पर, उसके ऊपर आखिरी प्रहार किया, और भार करते ही उसका प्राण निकल गए, और निकलते ही वो एकदम जोर से धड़ाम करते हुए पूरे गार्डन को बिगाड़ते हुए उसके ऊपर गिरी। गार्डन में अच्छे अच्छे सुंदर से फ्रूट्स, ट्रीज, फ्लावर्स इतने सारे थे, और वो इतने जोर से धड़म करते हुए गिरी जैसे कोई इंद्र ने कोई वज्र फेंक दिया हो, है ना। वृत्तासुर के ऊपर वैसे ही वज्र फेंका था, तब वैसे पूरे गार्डन वार्डन सब डिस्टर्ब हो गए थे। तो इस प्रकार पूतना गिरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare Hare. When Putana fell, her body was so big, tremulous sound had come. Her body appeared like mountains at many places, like as if huge mountain. उसकी आंखें देखे तो एकदम जैसे deep wells, कोई पानी के जो बावड़ियां होती है ना उसकी तरह होती है. Deep wells. Her teeth were like बड़े बड़े axe. इतना डरावना रूप, ऐसे एकदम बड़े बड़े टीथ, क्योंकि 20 किलोमीटर लंबी है तो टीथ वर्ग इतने बड़े होंगे, और उसका हाइट और इतनी बड़ी, और उसके ऊपर कृष्ण उसके ऊपर है, तो ऐसे जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है ना, वैसा सीन हो गया था. एंड तो ये पूतना थी कौन? पूतना थी कौन? उसको ये इस प्रकार मिला, तो ये पूतना थी कौन? तो पुराने जन्म में रत्नमाला नाम की एक महिला थी. जो कौन थी ये रत्नमाला? कौन थी? वामन अवतार में बलि महाराज की बहन थी. प्रिंसेस रत्न. हाँ, प्रिंसेस रत्नमाला. वामन अवतार के समय बलि महाराज जो थे, जो 100 यज्ञ कर रहे थे, जिससे वो स्वर्ग का आधिपत्य उन्होंने हासिल कर लिया था, परंतु क्वालिफिकेशन नहीं थी. जैसे हम बोलते हैं ना, हमने पिताजी डॉक्टर थे, और पिताजी का क्लिनिक हमको मिल गया, हमने एक्वायर कर लिया क्लिनिक इनहेरिटेंस के थ्रू, बट हमको क्वालिफिकेशन है क्या डॉक्टर बनने का? नहीं है, क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, तो डॉक्टरी जाके पढ़नी पड़ेगी, तब जाके उस क्लिनिक को संभाल पाओगे, है ना. तो वैसा है. तो स्वर्ग ले लिया था, लेकिन स्वर्ग का क्वालिफिकेशन नहीं था उनके पास. 100 आश्रम में यज्ञ करना जरूरी है, वो किया नहीं था उन्होंने. तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने बोला अब तुमको करना पड़ेगा, तो वो करने बैठे यज्ञ, 100 यज्ञ करने बैठे, और 100वां यज्ञ खत्म होने वाला था, तभी वामन अवतार आए थे. ओके, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि इस युग में अभी उनका चांस नहीं था. तो वामन अवतार के समय फिर कृष्ण वामन का रूप लेकर आए थे. तो जब वो छोटे से बालक के रूप में आए, छतरी वत्री डाल के, तो रत्नमाला ने सोचा, हाँ प्रभु, यू कैन हैव प्रसाद. हरी बोल, यू हैव टू गो, राइट. या प्रभु को एक बार लाइक हरे कृष्णा बोलते हैं हम लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. प्रभु said I will be leaving by 1, so I said no problem. मॉर्निंग से ही है प्रभु, 4 बजे से ही. So the like just रत्नमाला उस समय देखा उसने बच्चे को, एंड देन उसने बोला कि भाई काश मैं इसकी माँ होती, उनके मन में आया. ओके, तो बहुत ही सुंदर विचार था. तो कृष्ण ने सुन लिया ऑलरेडी, वामन के रूप में ऑलरेडी सुन लिया वो, कि भाई काश मैं, क्योंकि ऑलरेडी हृदय में विराजमान है, ही इज ऑलरेडी टेकिंग अकाउंट फ्रॉम देयर इटसेल्फ ओनली. बाद में फिर ये 3 पग की लीला हुई, और बलि महाराज को पाताल सुलोक में भिजवा दिया गया. तो फिर उसको बहुत गुस्सा आया, बोले मैं तो इसको माँ बनने की सोच रही थी, मैं तो इसको मार डालूंगी मुझे चांस मिला तो दोनों परस्पर भाव आए, एक तो माँ बनने का और दूसरा मार डालने का. उसीलिए उसको पूतना का रूप लेकर आना पड़ा, दोनों भाव से आई, माँ बन के, दात्री बन के, और मार डालने के हिसाब से. तो दोनों भाव से उसको आना पड़ा. क्यों? क्योंकि कृष्ण भावाग्रही जनार्दन है. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द भाव ऑफ एनीबडी. तो इन दिस वे पूतना was killed. ठीक है, in this way पूतना was killed. The mystery is that she was not killed, she was delivered, and in fact she was elevated. कैसे? उसको वैकुंठ में अपनी माता का स्थान दिया. अनेकों माता है उनकी. एक तो ओरिजिनल माता अपने यशोदा है, किसी कृपा के वजह से देवकी को इस बार गर्भ में पैदा हुए थे, नेचुरल मदर उनकी यशोदा ही है. तो और फिर वो वापस अपनी बाल लीलाएं करने वापस यशोदा के पास ही गए, और फिर वापस वहां से मथुरा है, मथुरा से क्या बोलते हैं, द्वारिका चले गए. तो ये उनको जो है उन्होंने उनको माता का दर्जा दे दिया. हाँ, माता का दर्जा दे दिया. तो ये सेम स्टोरी अपने क्या बोलते हैं, उद्धव जी भी महात्मा विदुर को बोल रहे थे. महात्मा विदुर जब ये महाभारत में उनको मीन्स आप समझते हैं, जब उनको हकाल दिया गया था, मीन्स लाइक दुर्योधन ने उसको बहुत बुरा भला बोल दिया, तो वो घर से निकल गए थे. घर से निकल गए थे वो 30 साल के लिए यहाँ चले गए थे, क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थलों में उनकी मुलाकात हुई थी क्या बोलते हैं, उद्धव जी से. ओके, क्योंकि उद्धव जी ने फिर उनको ये स्टोरी बोली थी पूतना की, कि बचपन में पूतना ऐसे आई थी. तो उस समय महात्मा विदुर बोलते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बोलता, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाम सयापा यदापि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम. तो विदुर महाराज कह रहे हैं कि आई एम थिंकिंग हाउ कृष्णा गेव ए प्लेस
of mother to that demon Putana who wanted to kill a 6-day-old Krishna by poisoning him. तो 6 दिवस के बच्चे को अहो बकीयम, बकी बकी उसका नाम था, एक और नाम था, पूतना का नाम एक और नाम था बकी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट लगा के आई थी और छोटे से बच्चे को झूले में मार देना चाह रही थी। उसको क्या ऐसा मर्सी दे दिया भगवान ने कि उसको अपनी माता का ये बना दिया। तो क्यों ना हो, क्योंकि वो आई तो थी, वो चल के आई थी और उसका मूड था उसको सर्व करें, है ना। तो सरेंडर जब कोई करता है तो ऑटोमेटिकली कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं। पत्र पुष्पम फल, तो उन्होंने प्रेम से दूध पिलाना चाहा, उन्होंने पी लिया, वो बात की बात है कि उसने प्राण भी पी लिए। तो सेम थिंग अप्लाइज टू अस। Why should we also not surrender to Krishna so that we also get his mercy? How a demon could get a mercy of getting mother in Vaikuntha, why can't we get if we just surrender to him? So this is your 8th lesson. You wrote all 7 or miss something? Miss something. Miss something, okay. Tomorrow No problem, I'll tell you. So 7th one you missed, I guess, right? I forgot to tell you the 7th one. Huh? So 7th one, the 7th lesson was Lord Shiva की तरह हमको भी poison पीना पड़ता है. We have to in our life drink poison of everybody. If we have to have bhakti of Krishna, then we should also have to drink poison in various places. तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कई जो रुकावट आती है, वो रुकावट कुछ नहीं है, विष की तरह होती है जो हमें पी के आगे निकलना पड़ता है। अभी आगे, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये वही तो ये एक्चुअली उस समय एज अ लेसन बोलना भूल गया। और 8वां लेसन है कि वी हैव टू सरेंडर टू हिम सो दैट वी कैन गेट ए मर्सी टू हिम। सो इसलिए गुरु महाराज को सरेंडर करते हैं, ये करते हैं, तो वी ऑटोमेटिकली गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा। एंड बकीयम क्यों? बिकॉज शी वॉज सिस्टर ऑफ बकासुर, बकासुर की बहन थी वो, शी वॉज सिस्टर। बकासुर कौन था? वो भी एक असुर था, इसी कृष्ण लीला में आता है, ठीक है। तो बकासुर की ये बहन थी बकी। हाँ, अगासुर अलग है, अगासुर अलग है। बकासुर वो जो हाँ, नहीं, यस यस, जो है उसको भी आएंगे स्टोरीज में, मैं बेचता हूँ। नहीं, पिछले जन्म में, हाँ पिछले जन्म में, लाइक ओरिजिनली मतलब अभी इस जन्म में बकासुर आया था, तो बकासुर की बहन बकी बन के आई। वो सतयुग का टाइम था, वामन अवतार अभी द्वापर का युग का है ना। तो वो सतयुग में शी वॉज रत्नमाला, बट अभी अहो बकी हम बोलते हैं ना, क्योंकि ये बकी उसका नाम था, खेचरी जो। तो ये बकासुर की बहन थी और 6 दिन के व्यक्ति को ऐसा मारने, 6 दिन के बच्चे को मारने आई थी। तो ये बहुत ही बड़ा कोवार्डस एक्ट, कोवार्डस एक्ट बोलते हैं ना, कोई बहुत बड़ा नीचता का कार्य था। तो नीचता मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कोवार्डिस, क्योंकि बच्चे को खा जाना, बच्चे को मारना इस सबसे नीच कार्य। सो कृष्णा सेड भी तुम तो नीचता से नीचता का कार्य दिखा रही हो, मैं तुम्हें उच्चता से उच्चता का कार्य दिखाऊंगा। आई विल डिलीवर यू द हाईएस्ट बेनिडिक्शन। तो इसीलिए मर्सी उसने दी, by giving the highest mercy of being a mother. So Krishna has many pastimes, but this pastime Putana is one of the best for getting the grace of mercy of Krishna. कितना भी पापी क्यों ना हो, जो खाने की व्यवस्था से आई थी, उसको भी जो सो पूतना जो सो उद्धार कर दिया भगवान ने। फिर सिर्फ दया दिखाई उसको और उसकी मदर, क्योंकि उसकी इच्छा थी मैं माँ बनूं, तो उसको मदर बना के वैकुंठ में उसको भेज दिया। तो ये था। तो अब सब लोग ब्रजवासी आए, तो ये उसके पीछे का रीजन था। ब्रजवासी आए पीछे, अरे देख के यशोदा तो देख के उस साइड को बेहोश होके गिर गई, परंतु गोपी लोग, ऑल द गोपीज, दे क्लाइम्ड अप टू पूतना एंड ब्रॉट कृष्णा डाउन। सो पीपल, so many males were also there, but they did not climb. Only gopis climbed up to the Putana and brought back Krishna. Why? Because gopis were the highest devotees of Krishna. Like, कुछ भी हो जाए भगवान के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी मौत से लड़ जाएंगे। तो उस प्रकार का जज्बा गोपियों के पास था। भगवान को एक बार सर में दर्द हो रहा था, तो नारद जी को बोला कि नारद जी बोले कि सर दर्द कैसे हो रहा है? तो बोले कोई गोपी या फिर कोई वैष्णव अपने चरणों का रज मुझे दे देगा, कोई गोपी मुझे चरण की रज दे देगी, तो मैं नारद जी को पहले बोले आप अपने चरणों का रज दे दीजिए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद ने बोला कि मुझे पाप लगेगा, आई डोंट वांट टू गो टू, है ना, पाताल लोक एंड ऑल दो, जाके मैं पाताल में जाके तड़पना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता मेरा चरण रज।
तो बोलते हैं लेकिन वो होगा तो उससे ही ठीक। तो बोले किसी से भी लेके आओ। तो वो जाके फिर पूछते हैं कोई देगा क्या, कोई भी नहीं देता है। लेकिन गोपियों के पास जाते तो गोपियां अपने पैरों से निकाल निकाल के थैला भर भर के देती है। तो बोलते अरे आपको पता है ऐसा रज देने से, तुम्हारे पैरों की मिट्टी देने से तुमको नरक का वास मिलेगा। तो बोलते नरक का वास मिलो चाहे कुछ भी मिलो, भगवान का सरदर्द ठीक होगा ना तो हमको तो वो चाहिए। बोले कृष्ण का सरदर्द ठीक होगा ना तो ये ले जाओ, बोले हमको उससे कोई डर नहीं है। तो इस प्रकार की भाव गोपियों का रहता है, इसलिए वो हर प्रकार से लड़ जाती है। तो वे ऊपर चढ़ गई और कृष्ण को उतार के ले आई। और कृष्ण को उतार के ले आई, मदर यशोदा ने उसको लिया, देखा कृष्ण ठीक है, फिर झाड़ फूट किया तो अपने गोमूत्र लेके आई और गोमूत्र उसके ऊपर छिड़काव किया। और ब्राह्मण भी आ गए थे, उन्होंने मंत्र उच्चार किया और ये सारा किया, गोधुली लगाई उसको। और आराम से फिर उसको जो है सो ये उसका पूरा राक्षसी के पास से उतार के लाए हैं, तो उनको थोड़ा लगा कि शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो शुद्ध, वो तो खुद शुद्ध है, परंतु ये भाव है क्योंकि ये हमारे इनडायरेक्टली हमारे वैदिक संस्कृति को दर्शाता है। ये कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये हमारा एक और पॉइंट ले लो। दैट हमें, हमारी ये संस्कृति है, हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है कि हमें हर प्रकार से गायों की रक्षा करनी चाहिए। कि गायों का मूत्र वगैरह लाके उसके ऊपर छिड़कते हैं, उसका साफ करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं। तो ये हमारी गायों की संस्कृति है, गायों का इतना इंपॉर्टेंस था हमारे लाइफ में। तो इसीलिए गो कृषि क्या बोलते, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम जो ये बात है, तो गायों की वजह से ही इन सारे गोपियों का काम चलता था। दूध मिलता था, दही बनता था, दही बन के घी निकालते थे, घी बेचते थे और बाकी अन्य चीजें खरीद के अपने घर लेके आते थे। तो इस प्रकार ये गो रक्षक हमारी ये थी, हमारी जो संस्कृति थी, गो रक्षक संस्कृति थी। आज गो भक्षक संस्कृति हो गई है ना। सो ये संस्कृति में भी डाउन हुआ है। तो ये दर्शाता है उसका, जो उन्होंने जब झाड़ा वाड़ा दिया, अपने गाय के पूंछ से झाड़ा दिलाया और गाय की मिट्टी लगाई और फिर गाय का मूत्र छिड़का, तो ये जो है सो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता था। तो उनके उस जमाने में वही एंटीसेप्टिक था कि भाई इसको कोई बीमारी ना लग जाए। गायों से गौमूत्र से स्नान करवाया था उसका, इस समय गौमूत्र से स्नान भी करवाया। तो शिला प्रभुपाद फिर बाद में लिखते हैं कि फिर कृष्ण ने, मदर यशोदा ने अपना दूध पिलाया और कृष्ण आराम से दूध पीकर सो गए। तब जाके मदर को शांति होती है, क्योंकि बच्चा जब कोई छोटा रहता है, मदर का दूध पी के जब सो जाता है तो माँ बहुत आनंदित होती है। क्यों? उसको पता है कि बच्चा सुरक्षित है, क्योंकि बच्चा जब दूध पी के आराम से सो जाता है, दैट मीन्स ही इज वेरी मच सेफ। तो वो बहुत सेफ हैंड्स में है, इसलिए मदर यशोदा फिर सांस लेती है ओके। नहीं तो बेहोश होके गिर गई थी वो, तो इतना भयंकर तूफान आ गया, वैसे हो गया था। तो उधर नंद बाबा आ रहे थे, जल्दी जल्दी चल के आ रहे थे, उस बीच में ये सब लीला घट गई कि बीच जितनी जल्दी हो सके आप गोकुल पहुंचो। इनका बात अपने वसुदेव की बात थी। तो वो रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में देखा अरे ये रास्ते में इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ गया। दूर से उनको पहाड़ ही दिखाई दे रहा था, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। पलट के जाने ही वाले थे कि भाई ये शायद गलत रास्ते आ गए, गोकुल का रास्ता नहीं है ये, क्योंकि वो गार्डन पूरा भूकंप आया वैसा हो गया था और इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। तो फिर बाद में फिर दूर से कुछ गोकुलवासी ने उनको देख लिया और वो भाग के आए, नंद महाराज, नंद महाराज। तब जाके उन्होंने देखा अरे, तो अरे ये हमारा ही रास्ता है। तो फिर बोलती है ये पहाड़ कहाँ से आ गया। तो फिर सारे गोकुलवासी जो है सो कथा बताते कि भाई ये कृष्ण को मारने आई थी। और तो एकदम उनका ऐसा दिल रुक जाता है, कृष्ण को मारने आई थी लेकिन कृष्ण सेफ है बोलते हैं, फिर जाके सांस लेते हैं, हाँ ठीक है। तो हम फिर सारा कथा सुनते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर बोलते हैं अब इसका इतना बड़े पहाड़ का क्या करें, इस बॉडी का क्या करें। तो बोलते कुछ नहीं, बोले जल्दी से फरसे लेके आओ, बोले एक्स बोलते ना, ब्रिंग एक्सेस। तो इट इज डिफाइंड कि 1000 फरसे लेके आए, 1000 axes were called and the body was cut into pieces and 1000 of fires were lit and that was burned by the Brajvasis. So जब जल रही थी तब उसमें से अगरू की खुशबू आ रही थी, अगरू की। जबकि हाँ, अगरू का मतलब जो अगरबत्ती है ना, यहाँ पे ऊद ऊद लगाया कि नहीं, ऊद लगाया ना, ऊद की खुशबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना को टच कर लिया। पूतना क्या खाती थी? हड्डी, ब्लड, बच्चों का खा जाती थी, मांस ये खाती थी। तो उसके से तो बदबू बदबू आनी चाहिए बॉडी में से, परंतु खुशबू आ रही थी। खुशबू क्यों आ रही थी? क्योंकि भगवान ने उसको टच कर लिया था, वो भी प्योर हो गई थी। तो भगवान यदि टच कर ले किसी को, तो कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, वो एकदम शुद्ध हो जाता है। तो उसकी बॉडी में से, इसलिए जब वो जल रहा था तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, अगरू की खुशबू आ रही थी। तो
इसीलिए क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि वो खुद पवित्र है ना, उनके चरणों से गंगा निकली है। वे खुद तो पवित्र है ही है, उनके चरणों से गंगा निकली, वो भी इतनी पवित्र है, चरणों से निकली है, चरणों से होके निकली है, बोलते जस्ट पानी से धो दिया था उसको। और वो जो पानी निकला है वो पानी आज इवन गटर के पानी को भी साफ कर देता है ना। कहने का मतलब कि बहती हुई गंगा कितने लोगों को साफ करके जाती है ना। घर में लाके रखते हैं हम लोग गंगा जल, ताकि कभी खराब नहीं होता है ना। तो इतने पोटेंसी वाले हैं, तो क्योंकि इतने पोटेंसी वाले हैं कृष्ण। और इस युग में कृष्ण का अवतार कैसे हुआ है? नाम रूप, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो कृष्ण नाम रूप में इस युग में अवतार लिए हैं, तो हमका नाम लेने से भी हमारे को कितनी शुद्धि हो सकती है आप समझ सको। इसलिए हम लोग एक राउंड करवाते हैं आपसे, है ना। इसलिए बार बार कृष्ण का हरे कृष्ण जप का मंत्र करवाते हैं कि एटलीस्ट जो आप, तो जस्ट बाय एसोसिएटिंग विद द नेम you get rid of your all sins. Ninth, huh? Just by associating with the name you get rid of your sins. So associating with Krishna or just associating with his name you get rid of your sins. क्योंकि प्रहलाद महाराज का मैंने एग्जांपल दिया ही था कि उन्होंने खाली नाम लेके ना, नाम भगवान से बड़ा उनका नाम है। तो परीक्षित महाराज फिर भी पूछते भाई सुखदेव गोस्वामी को, कोई ऐसी क्या खासियत थी कि पूतना को इतना बड़ा मोक्ष मिला, पूतना को इतना बड़ा मोक्ष मिला और उसको माता बनने का स्थान मिला। तो सुखदेव गोस्वामी 3 क्वालिटीज बताते हैं, 3 क्वालिटीज लेके हम लोग कथा को कहीं खत्म करेंगे। तो ये 3 क्वालिटीज की वजह से पूतना को ये मिला। तो 3 क्वालिटीज क्या है? पूतना चल के आई थी, ऊपर से खेचरी उड़ के आ सकती थी, सीधा घर में उड़ के जा सकती थी, परंतु उसने गोपी का भेष बनाया, गांव के बाहर अपना डेरा डाला, मीन्स लाइक उतरी, और वहां से पैदल चल के गोकुल तक उनके नंद महाराज के घर तक गई थी, पैदल चल के गई थी। तो भगवान के पास आपको चल के जाना होता है। तो भगवान देखते हैं कि इसलिए ना, इसलिए बोलते हैं ना ये यात्रा वगैरह सब लोग चल के करना चाहिए बोलते हैं। ठीक है, अब चलने की व्यवस्था नहीं है तो आप गाड़ी पे घोड़ों पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर की सीढ़ियों पे तो आपको चढ़ के ही जाना पड़ता है। लिफ्ट बन जाएगी लेकिन फिर भी मेन 4-5 सीढ़ियां तो आपको चल के जाना पड़ता है। मंदिर का प्रांगण में तो आपको चल के जाना पड़ता है ना। हो सके जब तक बिल्कुल, फिर कोई बिल्कुल ही व्यवस्था में नहीं है, उसको गाड़ी पे बिठा के ले जाता है तो अलग बात है, बट हुए जब तक चल के जाना चाहिए। तो ये एक संदेश है। तो हमें भी जो है सो वो कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें भगवान के घर चल के जाना चाहिए ना। आप लोग गाड़ी में यहाँ तक आते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर फिर चल के आते हैं ना। तो चल के आते हैं फिर प्रणाम करते हैं भगवान को। तो चल के आना चाहिए, अपने दोनों पैरों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसने भी किया था, इसीलिए वन ऑफ द रीजन पूतना को उन्होंने कृपा प्रदान की। तो हम भी अगर चल के आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमको भी कृपा अवश्य मिलेगी। आप पूछ रहे थे ना प्रभु, तो चल के आना तो कृपा अवश्य मिलेगी। फिर इसलिए हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हाँ बिल्कुल, पैदों से, इसीलिए पैरों को यूज करना चाहिए भगवान की सेवा में। दूसरा उसने तिलक लगा के आई थी, है ना। शुरू में डिस्क्रिप्शन में सुना था ना, तिलक लगा आई थी वो। तिलक जब लगा के आते हैं तो ये ऊर्ध्व पुंड तिलक क्या है, ये यू शेप क्या है? भगवान के चरणों का, भगवान के चरण है ये, यू शेप भगवान के चरण है, और इनके चरण पे हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं नीचे। तो ये नीचे जो पत्ते का शेप खींचते हैं, ये तुलसी खींचते हैं। तो ये तुलसी, ये वो तिलक लगा के आई थी। और ये तिलक कहाँ से निकलता है? गोपी तालाब से, जहां पर भगवान की 16,108 पत्नियों ने अपने प्राण त्यागे थे। गोपी तालाब से, गोपी चंदन प्रभु जहाँ से आए हैं गुजरात से, वहीं पे गोपी तालाब है। हम लोग भी दर्शन किए हैं गोपी तालाब का। तो वहां से ये चंदन निकल के आता है, उसके अंदर की मिट्टी है ये। तो फिर ठीक है, आजकल प्रोसेसिंग होता है, केमिकल वगैरह सब मिलता है, बट देन द क्वेश्चन इज उसका तत्व वो है। तो वो तिलक लगा के आई थी। तो जो वो तिलक लगाता है उसको गोविंद प्रेम अवश्य मिलता है। मति रति कृष्ण में लगनी चाहिए, इसलिए गोविंद प्रेम मिलने के लिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों को बोलते हैं, आते ही ना आप लोग तिलक लगा लिया करो, तो कम से कम कथा जब तक चल रही है तो आप लोगों को कृष्ण प्रेम अवश्य मिले। तो क्या इनफैक्ट लाइक यू नो उसे ये यही सेम तिलक के लिए तो ऑलरेडी गोपियों ने ऑलरेडी की, अपने इसकी भी चिंता नहीं की, प्राणों की भी चिंता नहीं की कि हमें नरक का ये मिलेगा। तो ये फैक्ट है। और इनफैक्ट भागवतम में एक और जगह यहाँ पे यमराज जी खुद डिक्लेयर करते हैं, यमदूतों को बोलते हैं कि भाई जब यमदूत अजामिल को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तो उसको जब वो क्या बोलते हैं, वो नाम लेता है नारायण नारायण, जब नाम लेता है तो विष्णुदूत आए थे। तो वो लोग जाके उसको पूछते हैं भाई ये लोग कौन थे, हम तो आप ही सुपीरियर सोच रहे थे कि भाई आपके बाद कोई है नहीं,
तो बोलते नहीं नहीं, जो तिलक लगाता है उसके आसपास भी मत पटकना। वो आगे नेक्स्ट है, थर्ड है। जो तिलक लगाता है उसके आसपास भी मत पहुंचना। तो ये तिलक लगाना इसीलिए, अगर उनको तुम लेके आने का जरा भी मत सोचना, क्योंकि वो विष्णु का तिलक है। यदि उनके ऊपर विष्णु की छत्र छाया रहती है, यदि तुम उनको लेके आओगे तो फिर बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैं भी नहीं संभालने वाला हूँ तुम लोगों को। बाद में विष्णु दूत तुम्हारा जो हाल करेंगे उससे मैं भी तुमको बचा नहीं सकता हूँ। ये रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने उसमें छोड़ दिया है। और यदि आप मीन्स लाइक आप हम वो सोच रहे थे हम तो उसको यम पाश में डाल के लाते हैं, वही आखिरी है। ना 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 बोले, विष्णु पाश अलग होता है बोले। वो भक्तों को ही एप्लीकेबल होता है बोले। तो बोले यदि किसी के तिलक लगा हुआ है तो उनके पास भी मत जाना। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जनरली तिलक लगाए हुए रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि कब डेथ आएगी पता नहीं। तो ये वन ऑफ द रेजोल्यूशन है यमराज जी का, कि जिनके ऊपर तिलक लगाया हुआ है उनको तो बिल्कुल भी लेके नहीं आना। फिर तीसरा कारण, वो कंठी माला पहन के भी आई थी। सो दैट वाज 11, तिलक लगाना इसलिए चाहिए सो दैट वी गेट ओके। और कंठी माला पहन कर आई थी। तो कंठी माला हमारे गले में रहती है, राइट। तो भगवान बहुत प्लीज्ड हुए थे, जैसे कि भाई है ना, ये मेरा व्यक्ति आ गया। अब जैसे कोई कुत्ता अपने घर का रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके गले में बेल्ट लगा के छोड़ते हैं ना। लाइसेंस चिप रहता है, कई जगह अपने अलग अलग रहता है ना, हर एक कंट्रीज का अलग अलग है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी वाले आके पकड़ नहीं सकते, राइट। अगर गले में पट्टा है तो किसी का नाम लिखा है तो म्युनिसिपैलिटी वाले आके पकड़ते नहीं है उस कुत्ते को, है ना। और यदि नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी वाले उसको उठा के ले आते हैं और उसको मार देते हैं, स्टेराइल करते हैं, जो भी करते हैं, दवाइयां बनाते हैं, जो भी करते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं। तो ये वो है। और वो यदि गले में पट्टा है उसके तो उसको हाथ भी नहीं लगाते। तो सिमिलरली लेकिन ये सेम चीज क्या हुआ था, मीन्स लाइक जब हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे, हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो उन्होंने बाहर ये तुलसी की माला, ये उसी के प्रकार, तो वो तुलसी माला पहन के आई थी। तो ये तुलसी की माला हम जब धारण करते हैं तो हम यही बताते हैं कि हम भी भगवान के कुत्ते हैं। तो यमराज हमको ले जा नहीं सकते। यमराज वो अपना रेजोल्यूशन भी पास करके देते हैं कि यदि किसी ने कंठी माला पहन रखी है उसको तो बिल्कुल भी नहीं लाना, उसको तो तुम लोग ला ही नहीं सकते। अगर वो कंठी माला पहना है, उसका अंत समय आ गया, तुम्हें जाना है लेने के लिए, लेकिन अगर वो कंठी माला पहना है तो उसमें छोड़ देना है, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन दूसरा है। जिसने कंठी माला नहीं पहनी है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में, उनको पकड़ के लेके आओ, उनका फिर हम लेखा जोखा करेंगे। यदि कंठी माला पहन रखी है तो ये जुरिस्डिक्शन विष्णु का है, फिर विष्णु जाने। तो इसलिए वैष्णव लोग जनरली इसीलिए कंठी धारण करते हैं। कंठी धारण करने के लिए थोड़ा हमको सात्विक होना पड़ता है, दैट्स बोलते हैं। यदि क्या हो जाता है कि सात्विक में हम चार ये जो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है इसको फॉलो करना शुरू करते हो, तो फिर हम भी आप लोगों को कंठी पहनो बोल के एडवाइस कर सकते हैं। 3 भी करते हो मिनिमम और 1 छोड़ सकते हो तो भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप 2 राउंड कंठी पहन सकते हो। लेकिन तीसरा विद द कंटेंट की चौथे के अंदर भी मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। जैसे प्याज, हाँ नहीं मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ये कोई भी नहीं देंगे। तो आपको आज आपके गले में धारण करना, 1 राउंड धारण करना कर सकते हो, एटलीस्ट 3 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना। वैसे वही 4 में तो यही अपने नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें से प्याज लहसुन छूटता नहीं है व्यक्ति का जल्दी से, ये चाय कॉफी नहीं छूटती है जल्दी से। ओके, चाय कॉफी प्याज लहसुन यदि आपको अभी जल्दी नहीं छूट रहा है तो एक माला आप धारण करके विद एन इंटेंट कि भाई अगले 6 महीने में मैं कोशिश करूंगा छोड़ दूं। लेकिन प्रभु एक बार लगाए ना उसको निकालना नहीं चाहिए। क्या वो निकालते कौन है? निकाल वो तो मतलब ही नहीं है, आप एक बार मतलब नहीं है। भगवान का कुत्ता हो गया तो फिर बेल्ट कैसे बे- जब मरेगा तभी निकालेगा। ये सिंपल है, हमारे को तो ये टूटने आ गई तो हमको दूसरी पहनना ही है इमीडिएटली। उसे इमीडिएटली दूसरी रेडी रखते हैं हम। सर अभी प्रभु के पास दूसरी नहीं थी तो मैं लाया था वहां से, क्योंकि टूट जाए भरोसा नहीं है ना, ये तो प्लास्टिक का धागा अंदर टूट जाए भरोसा नहीं है। नहीं वो तुलसी का ये बताया। हाँ तो धागे के ऊपर ही पहना हुआ है ना प्रभु, हाँ तो धागा टूट जाए तो तुलसी का माला टूट जाएगा ना। तो इसीलिए हम तो रेडी रखना पड़ता है दूसरा। ठीक है, जनेऊ जैसे कुछ कार्य हो गया तो जब बदलना पड़ता है, वैसे ये भी बदलना पड़ता है, लेकिन बिना गली के कंठी के नहीं रहना पड़ता ये, क्योंकि इन उन्होंने दिया है, यमराज जी ने रेजोल्यूशन पास किया है कि उनको बिल्कुल भी पकड़ के नहीं आना। तो ये लंका में भी उन्होंने देखा ये तुलसी को, क्योंकि तुलसी बड़ी पवित्रता की प्रतीक है। हनुमान जी ने लंका में तुलसी को देखा और एकदम उनके तुरंत मुख से निकला, लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
है ना। इसके ये अपने सुंदरकांड में आता है, अपने क्या बोलते हैं, इनके घर के बाहर, अपने विभीषण के घर के बाहर उन्होंने तुलसी का कुंडा देख लिया, तो उनको एकदम तुलसी देख के तो ये तो भगवान को मानने वाला कोई व्यक्ति है, तो इसके घर तुलसी जिसके घर में रहती है, जनरली कृष्ण की विष्णु की सेवा होते रहती है, तभी वो लोग ये लाइक उसको रखते हैं। तो वहां पर भी, लंका में भी, तो लंका निशिचर निकरने वासा, लंका में सब निशिचर है। निशिचर अर्थात रात में जगने वाले, निशि का मतलब होता है रात, चर मतलब चलने वाले, रात में चलने वाले, अर्थात जो रात में चलते हैं वे सारे राक्षस कैटेगरी के होते हैं। यदि हम भी रात में विचरण करने की आदत है, हमको रात में 2-2 3-3 बजे तक और फिर सवेरे घर पे आने की आदत है, यहाँ निशा सर्वभूतानाम भगवत गीता में भी आता है कि ये असुर होते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों को आदत है 2-2 3-3 बजे तक असुर बन के घूमते रहने की, पता नहीं क्या कारण है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, फिर भी लोग 2-2 3-3 बजे तक जागते फिरते रहते हैं। और तो असुरों का निशिचर का मतलब काम है कि रात को जगने वाला और दिन में सोने वाला, और वही देवताओं का रिवर्स है, रात में सोने वाले और दिन में अर्ली उठने वाले। तो निशिचर जब सोने जाते हैं तब देवता भक्त लोग उठ के कीर्तन करना शुरू करते हैं, है ना। वो 3-4 बजे सोने आते हैं, हम 3-4 बजे उठ के भगवान के दिन का शुरुआत करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। तो पूतना ने कंठी माला पहनी थी, इसीलिए शी वाज डिलीवर्ड बाय कृष्णा, दिस इज वन ऑफ द थर्ड रीजन, एंड शी वाज प्रमोटेड टू दिस वैकुंठ प्लानस। तो ये एक चौथा है कि दिस कंठी माला आल्सो सेव्स अस फ्रॉम आवर पेरिनियल डेथ एंड ऑल दोस। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे इस परंपरा में आचार्य है, वो इस लीला का एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम कलयुग में कैसे देखना चाहिए, कि पूतना कैसे आई थी, भेष बदलकर, लाइक शी केम इन अ डिस्गाइज। वी ऑल्सो सी सो मेनी पीपल हु आर डिस्गाइज्ड। मैं आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है बाहर से कंठी माला पहन के बैठा हूं, अंदर से पता नहीं राक्षस हूं, पता नहीं ना। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ढकोसले वाले लोग मिलेंगे जो दिखावा कुछ करेंगे और रहेंगे कुछ और। एग्जैक्टली पूतना को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे कई गुरु मिलेंगे आपको, आप मेरे को 1 लाख दे दो, मैं आपको इनिशिएशन दे दूंगा, आपको माला दे दूंगा, और आप जब करने की भी जरूरत नहीं, मैं ही कर लूंगा जब आपके बारे में। कई लोग, नहीं ब्रो, आप ब्राह्मण बिठा दो, जब ब्राह्मण कर लेंगे, और लेकिन जो आपको करना है आपको ही करना है। ब्रो ये ये तो क्वेश्चन आया था, बोगस गुरु से बच के रहने का। उसी के बारे में एक आया। हाँ, तो एक गुरु क्या कर रहे थे, ऐसे चल रहे थे, तो वो ऐसे झूठे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक भक्त आ गया, वो बोले कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है। तो झूठ से बोलते जैसे नाक पकड़ो और पानी में डूब जाओ, जब तक तुमको दिखाई ना दे तब तक तुम नहीं निकलो। फिर वो सोचते सही है, वो गया पानी में डूब गया, नाक पकड़ा, मर जाएगा। वो फिर 1 मिनट हो गया, जब मरने वाला है तब प्रभु उसको दिखाई दिया। वैसे जान प्रभु बोले, किसने बोला? मुझे मेरे गुरु ने बोले। बोले ठीक है, मैं उसको लेके आता हूँ। उसने बांध दिया पेड़ में। फिर वो जो गुरु थे वो लेके आए, बोले देखिए वो प्रभु इधर बांधे हैं, उसको नहीं दिखाई दे रहा। बोला, वो फिर बता दिया कि मैं झूठा हूँ। तो इसीलिए वही है, बोगस गुरु से दिखाई नहीं दे रहा है, तो 13th लेसन है, बोगस गुरु से बच के रहना चाहिए। 13th लेसन है, बोगस गुरु से बच के रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये पूतना लीला बहुत ही सुंदर लीला है, और इसको बोलते हैं ना, इसलिए पूतना मारी नहीं गई बल्कि उसको मोक्ष हुआ था। और ये हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये लीला बिल्कुल भी सुननी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने ये लीला ली, आगे हम दूसरी लीलाएं भी लेंगे 2-3 हफ्ते। तो इस प्रकार कहते हैं ना कि जिसको भगवान मारे वो मोक्ष लेगा। हाँ यार भगवान ने मारे तो किसको 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 जिसको भगवान हाँ, मारे, किसको समय आएगा तो भगवान, हाँ ठीक है, भगवान या मारे मोक्ष ही होता है ना। ना, नॉट नेसेसरी प्रभु। मोक्ष, रावण है, रावण को श्री राम ने मार दिया। हाँ, रावण क्योंकि भगवान ने मारा ना, भगवान ने मारा तो उसका तो मोक्ष है। सारे सारे जो महाभारत के कैरेक्टर्स है वो भी सारे, यस यस, वो भी अपने अपने डेस्टिनेशन पे वापस गए, क्योंकि वो तो सारे, क्योंकि जय विजयी थे, रावण तो और कोई नहीं था, भगवान के द्वारपाल ही थे जिनको श्राप मिला था, और 3 जन्म, इनफैक्ट 3 जन्म और छद्म जन्म, एक चौथा जन्म भी उनको मिला। तो इस प्रकार हाँ, पूतना को मारकर उनको स्थान मिला। पूतना ने तो खाली इच्छा प्रकट की थी, मैं उनकी माँ बनना चाहती हूँ, वो इच्छा पूरी की भगवान ने। उतना इच्छा तो बहुत पहले की थी, सतयुग में, सतयुग में, और उसकी पूरी हुई द्वापर युग में। हाँ। तो हमारे कितने जन्म हो चुके माता जी, हम हमारे 51, ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है ये, और उनका एक दिन होता है हमारे जो 4 युग का, ये 4 युग जो बीते ना,
43,20,000 ईयर्स का उनका एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और उतनी बड़ी उनकी रात होती है। तो 86 लाख ईयर्स की ब्रह्मा जी का एक दिन रात होती है। वैसे 360 दिन, सॉरी 360 दिन, वैसे 360 दिन उसका एक साल, और वैसे 100 साल उनकी उम्र है। 311 ट्रिलियन ईयर्स बोलते हैं उसका। अभी उनका 51वां साल चालू है ब्रह्मा जी का। ये लीला है, कई युग बीत चुके हैं, हमको तो पता भी नहीं कितने जन्म हो चुके हैं हमारे। तो कब वो मिलेगा मोक्ष हमें भी पता नहीं, कितने जन्म और लेने पड़ेंगे वो पता नहीं। इसीलिए समझो इस बात को कि यदि तुम इनिशिएशन लेते हो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो और अपने आप को कृष्ण को समर्पण करते हो, तो श्रीला प्रभुपाद ने गारंटी दी है, इस जन्म में यदि कोई कारण से नहीं हुआ तो 3 जन्म के अंदर अंदर मैं तुमको लेके जाऊंगा आकर। यदि वहां पे एंट्री नहीं भी मिलती है तो मैं बैकएंड से तुम्हें खिंचाऊंगा, क्योंकि गुरु यदि शिष्य का हाथ पकड़ लेता है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं करते, गुरु की बात मानेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ है, तो गोविंद को पकड़ लिया तो गुरु बलियारी जाए है, तो मैं गुरु को पकड़ लिया तो गोविंद बलियारी जाए, तो गोविंद भी बहुत खुश हुआ था। इसीलिए गुरु बहुत जरूरी अपने जीवन में, और इनिशिएशन ये जो प्रोसेस बनाया है ताकि हमारा शुद्धिकरण के लिए, ताकि हम उस चीज को समझे, और जब हम नित्य दिन कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार पक्का है। हरि बोल, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।